Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 15 of the chapter 4 moving charges and magnetism. The topics in this part to be discussed are moving coil galvanometer, MCG, and its current and voltage sensitivity. These all topics are related to, that means current and voltage sensitivity are related to moving coil galvanometer. This topic is a very important topic for different boards examinations of class 12 all over in India. So you should watch and understand this video sincerely. It can be asked in the 12th board examination as long questions or short questions as well. For example, what is the importance of radial magnetic field in a moving coil galvanometer, or the factors, give the factors on which current and voltage current sensitivity or voltage sensitivity of a moving coil galvanometer depends. Or in very short question, it can be asked as give the principle of a moving coil galvanometer. And in long question, it can be asked as give the construction and working with principle of a moving coil galvanometer, so that the current produced in the moving coil, in the coil of a moving coil galvanometer is directly proportional to its deflection. It can be asked as a long question. It is already asked in 2010 All India CBSE board examination in 2010. So different types of short questions can also be asked in the 12th board, different 12 board examinations all over India. So it is a very important topic. The students are advised to watch this video and understand this video very sincerely. Now I am going to start moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer, short form में it is moving coil galvanometer. Short form में it can be written as MCG, M.C.G. moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer, and then we will discuss its current sensitivity, current and voltage sensitivity. Moving coil galvanometer, और इसको शॉर्ट फॉर एब्रेविएटेड फॉर्म में, इन एब्रेविएटेड फॉर्म इट कैन बी रिटन एज M.C.G. हिंदी में इसे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं M.C.G. M स्टैंड्स फॉर मूविंग, C फॉर कॉयल एंड G फॉर गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर. नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो कॉयल होगा वह चल का मतलब मूवेबल होगा. Coil can be movable and the coil is suspended inside a strong magnetic field of a strong between two pole pieces of a strong electromagnet. इसमें जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होता है, उसमें यूजुअली प्रायः पीतल का, ब्रास के फ्रेम पर, ब्रास का एक आयताकार, ब्रास या एल्युमिनियम का भी फ्रेम हो सकता है, यूजुअली ब्रास फ्रेम का यूज किया जाता है, ब्रास मटेरियल का यूज किया जाता है, और उसका रेक्टेंगुलर फ्रेम या सर्कुलर भी हो सकता है. तो रेक्टेंगुलर फ्रेम पर, यूजुअली रेक्टेंगुलर फ्रेम पर कॉपर का इंसुलेटेड वायर, कॉपर वायर को ऊपर से कवर, प्लास्टिक कवर लगाकर उसे इंसुलेट कर दिया जाता है, जिससे कि जब उसके डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स आपस में कांटेक्ट में आएँ तो स्पार्किंग ना हो. तो उसको अवॉइड करने के लिए कॉपर वायर को इंसुलेटेड कर दिया जाता है, उसको विसंवाहित कर दिया जाता है
कुचालक बना दिया जाता है बाहर से, उसमें प्लास्टिक का कवर लगा करके। जैसे कि घरों में वायर को हम करते हैं, जैसे कॉपर वायर होता है घरों में, तो ऊपर से प्लास्टिक का कवर रहता है, जिससे कि उसको छूने पर या उसके कांटेक्ट में आने पर कोई भी डैमेज ना हो, कोई भी खतरा न रहे। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक अस्थाई, एक स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली विद्युत चुंबक, जिसमें कि 2 उसके पोल पीसेस होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि कॉन्केव शेप का होता है। कॉन्केव शेप का होने का कारण यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वह रेडियल बना रहे। रेडियल का मतलब है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उस कॉइल से ही होकर कंसंट्रेटेड हो, और कॉइल का जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल के प्लेन के हमेशा पैरेलल बना रहे, तो इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ट्रेज चुंबकीय क्षेत्र, हिंदी में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेज चुंबकीय क्षेत्र। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या पूछा गया भी है डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसका जवाब हम बाद में हम देंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमने उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया। तो कॉइल जो है किसका होता है? कॉइल होता है एक कॉपर वायर का बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स होता है, जिसको कि ब्रास का एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर कॉपर का इंसुलेटेड वायर, तांबे का विसंवाहित तार का मेनी नंबर ऑफ टर्न्स उस पर लपेट दिया जाता है। दैट मीन्स an insulated copper wire of many number of turns are wounded over a rectangular frame of usually made of brass और एल्युमिनियम। और जो कॉइल होता है उसके बीच का जो स्पेस होता है, बीच का भाग खाली होता है, एम्प्टी होता है, कॉइल के अंदर का जो पोर्शन है, और उसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, जिसका कांटेक्ट जो है उस कॉइल से, उस फ्रेम के किसी भी पार्ट से नहीं होता है। तो आखिर रखा कैसे जाता है? तो उस पर एक स्टैंड होता है, उसमें एक स्टैंड लगा रहता है, उसी पर कॉइल को रख दिया जाता है। जो खाली स्पेस है रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच में, तो एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोर से ही होकर के पास कराता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वह मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर, कॉइल को लटकाने पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से होकर के ही, कोर से ही होकर ही पास करें, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बना रहे। तो इसके लिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज होता है। कोर एक पीस है, आयरन पीस है, जो कि कॉइल के ठीक बीच में होता है, और उसका कॉन्टैक्ट कॉइल के साथ किसी भी पॉइंट के साथ उसका कांटेक्ट नहीं होता है। एक स्टैंड पर उसको रख दिया जाता है, उसके अंदर एक स्टैंड रहता है बना हुआ, उस पर उसको एडजस्ट कर दिया जाता है उस आयरन पीस को। तो ये कंस्ट्रक्शन है। और इसको लटकाया किससे जाता है? कॉइल को लटकाया जाता है फॉस्फोर ब्रोंज के मटेरियल। फॉस्फोर ब्रोंज का मटेरियल इसलिए यूज किया जाता है कि फॉस्फोर ब्रोंज का जो है मटेरियल का बहुत ही पतला वायर भी उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और साथ ही इसका जो टॉर्सनल कांस्टेंट है C, स्मॉल c से डिनोट करेंगे, उसका वैल्यू काफ़ी कम होता है, स्मॉल होता है, जिससे कि सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी अधिक हो इसके लिए। और साथ ही स्प्रिंग का भी एक यूज किया जाता है कॉइल के निचले पोर्शन में, जिससे कि टॉर्सनल कांस्टेंट का वैल्यू जो है स्मॉल हो। तो फॉस्फोर ब्रोंज के हेल्प से, वायर के हेल्प से इसको लटका दिया जाता है। फॉस्फोर ब्रोंज का क्या एडवांटेज है हम बतलाया, काफ़ी महीन तार, पतला तार, 3 वायर उससे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और साथ ही उसका टॉर्सनल कांस्टेंट का वैल्यू भी कम होता है। तो फॉस्फोर ब्रोंज के तार से लटका देते हैं, और कॉइल, उस वायर में एक मिरर लगा रहता है, कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर में जब कॉइल से होकर करंट फ्लो करेगा, जो कि कॉइल के थोड़ा ऊपर होता है, फॉस्फोर ब्रोंज के वायर में एक कॉन्केव मिरर एडजस्ट कर दिया जाता है, जो कि कॉइल के थोड़ा ऊपर होता है। तो जब कॉइल से होकर जब करंट पास कराया जाएगा, तो टॉर्क एक्ट करेगा उस कॉइल पर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसके कारण टॉर्क में डिफ्लेक्शन होगा,
तो डिफ्लेक्शन होने से जो मिरर अटैच्ड है सस्पेंशन वायर फॉस्फोर बंच का, तो उसमें भी उस मिरर भी साथ साथ उसके साथ रिफ्लेक्ट होगा, घूमेगा कॉइल के साथ साथ। तो उसके हेल्प से हम लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट के हेल्प से हम कॉइल का माने कॉन्केव मिरर के हेल्प से कॉइल का डिफ्लेक्शन थीटा लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से हम मालूम कर सकते हैं, जिसको हम बाद में बतलाएंगे। तो यही कंस्ट्रक्शन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। और इट इज़, अब सबसे पहले इसके बारे में हम जानें, इट इज़ है क्या चीज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर a small current, a small electric current passing through an electrical circuit. So write down it. Moving coil galvanometer, MCG, in short form, MCG is an electrical instrument, an electrical instrument used to measure a small current in an electrical circuit, electric circuit, in an electric circuit or electrical circuit. तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG is an electrical instrument used to measure a small current that flows in an electrical circuit. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली अल्प धारा का मापन किया जा सकता है। हिंदी में भी, हिंदी भाषी छात्रों विद्यार्थियों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने इसे हिंदी में भी बीच बीच में हिंदी में भी बतला देता हूँ, जिससे कि उन्हें सुविधा हो, वह सुन करके भी उसे लिख सकें। नाउ इट्स प्रिंसिपल, और बिफोर प्रिंसिपल it was invented by an American scientist D.R. Sonwell. इसका कंस्ट्रक्ट किया था किसने? अब इसका इन्वेंशन किसने किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसका नाम था D.R. Sonwell. D.R. Sonwell, an American scientist who has invented moving coil galvanometer. D.R. Sonwell, an American scientist, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइंटिस्ट has invented moving coil galvanometer MCG. D.R. Sonwell, moving coil galvanometer MCG galvanometer is invented by an American scientist D.R. Sonwell. अब नाउ इस प्रिंसिपल शॉर्ट में भी पूछ सकता है, जैसे CBSE एग्जाम या अदर बोर्ड्स का एग्जाम, स्टेट बोर्ड्स का एग्जाम, जिसमें कि 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में ना हो। तो चूँकि ऑल इंडिया CBSE एग्जामिनेशन में इसे पूछा गया है, पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और गिव द प्रिंसिपल ऑन विच MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स works. The moving coil galvanometer depends on the principle that if a current carrying coil, rectangular coil is suspended inside a strong magnetic field, it experiences a deflecting torque which tries to deflect the coil of the moving coil of the galvanometer from its vertical position or initial position through some angle theta. तो किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है? मूविंग कॉइलोमीटर उस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है जब किसी आयताकार
कॉइल को, कुंडली को तांबे के विसंवाहित तार के अनेक फेरों की एक कुंडली को, आयताकार कुंडली को जब एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में फॉस्फोर ब्रोंज की तार की सहायता से लटकाया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने पर, कॉइल से विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने पर कॉइल में डिफ्लेक्शन होता है। कॉइल पर एक विक्षेपक बल आघूर्ण काम करता है जो कि कॉइल को उदग्र स्थिति से, कॉइल की पूर्व स्थिति जो उदग्र स्थिति है, मैग्नेटिक फील्ड में वह परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हैंग होता है, हैंग किया जाता है, लटकता रहता है कॉइल। तो अपने वर्टिकल पोजीशन से जब करंट फ्लो कराया जाता है कॉइल से तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है और उस डिफ्लेक्शन को हम लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स। यही सिद्धांत है जिस पर एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर आधारित है। कौन सा सिद्धांत है कि व्हेन ए राइट डाउन इट, इफ ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, करंट कैरिंग मीन्स जिससे करंट फ्लो करे, जिस कॉइल से करंट फ्लो करे उसको करंट कैरिंग कॉइल कहा जाएगा। इफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज suspended inside a strong magnetic field जो कि टू पोल पीसेस होगा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का, एक विद्युत चुंबक का दो अवतल शक्तिशाली ध्रुवखंड होगा, पोल पीसेस होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसी के बीच में कॉइल को फॉस्फोर ब्रोंज के तार के वायर की हेल्प से लटकाया जाता है। इनसाइड ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड it experiences a torque, it experiences a deflecting torque, which tries to deflect the coil from its vertical position, that is the original position, to any other orientation, that means through any other position or through any angle. It experiences a deflecting torque. तो ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, CBSE ऑल इंडिया पूछा जा चुका भी है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस बोर्ड में भी 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस के अलावा क्वेश्चंस के अलावा 1 मार्क्स का क्वेश्चन जिस बोर्ड में भी है, CBSE बोर्ड में तो पूछा ही जा चुका है और अदर बोर्ड्स में भी, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स का को छोड़ करके इस ढंग का क्वेश्चन हो, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में भी, या 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। गिव द प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 2 मार्क्स में तो क्वेश्चन लगभग हर बोर्ड में है, CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स में भी, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में भी है, 12 बोर्ड में। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। राइट डाउन, आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ ए करंट कैरिंग coil is suspended inside a strong magnetic field, it experiences a deflecting torque. हिंदी में भी फिर से रिपीट करता हूँ, जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को जो तांबे के अनेक फेरों, अनेक लपेटों से बनी होती है विसंवाहित तांबे के तार से, तो जब किसी तांबे के आयताकार धारावाही कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो वह कुंडली विक्षेपक बल आघूर्ण का अनुभव करती है। इट एक्सपीरियंसेस ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, जिससे वह अपने पूर्व स्थिति से घुमाने का ये जो टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, विक्षेपक बल आघूर्ण कुंडली को अपने पूर्व स्थिति से घुमाने का प्रयास करता है, कुछ एंगल से, कुछ कोण से। ये प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया। अब इसका हम डायग्राम शो करते हैं और उसके बाद वर्किंग इसका, और ये शो करेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो करता है वह कॉइल के डिफ्लेक्शन टॉर्क के कारण, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण कॉइल अपने वर्टिकल पोजीशन से, इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो करंट फ्लो किसके कारण, तो करंट फ्लो होने के कारण
करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और पहले से उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया ही जाता है। और करंट फ्लो करने के कारण भी कॉइल से जब करंट फ्लो करेगा तो ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कि वह सस्पेंडेड है, कॉइल लटकाया हुआ है, और फिर करंट जब कॉइल से करंट फ्लो करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, और उसके कारण कॉइल पर, गैल्वेनोमीटर के कॉइल पर, सस्पेंडेड कॉइल पर लटकते हुए कुंडली पर विक्षेपक बलाघूर्ण कार्य करता है, जो कि उसको पूर्व स्थिति से घुमाने का प्रयास करता है, उसे घुमाता है कुछ एंगल से, थीटा एंगल से, सपोज एंगल इज थीटा, और उसको हम मेजर कर सकते हैं। विक्षेप कुंडली का जो डिफ्लेक्शन है थीटा, उसको लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से हम मेजर कर सकते हैं। लैंप एवं स्केल व्यवस्था के द्वारा कुंडली का विक्षेप, गैल्वेनोमीटर की कुंडली का विक्षेप को मापा जा सकता है। Now 3 diagrams I have drawn. First is figure 1 represents the diagram of a moving coil galvanometer in which consists of a rectangular coil PQRS. इसमें एक आयताकार कुंडली है PQRS जिसका लेंथ L है, PQ साइड इसका लेंथ है और PS साइड इसका ब्रेड्थ है। तो इसका लेंथ लंबाई L है और चौड़ाई जो ब्रेड्थ है PS B है, और इसको लटका दिया गया है एक फॉस्फोर ब्रोंज तार से। ये वायर है फॉस्फोर ब्रोंज का, ये वायर है फॉस्फोर ब्रोंज का, जिसमें एक कॉन्केव मिरर, M जो है कॉन्केव मिरर है, इसको इंसर्ट कर दिया गया है, वायर में लगा दिया गया है। कॉन्केव मिरर है जो कि वायर में अटैच्ड है, और किस चीज़ का पतला तार है जिसे हैंग किया गया है। ये ऊपर ब्रास का T है, टॉर्सन हेड। टॉर्सन हेड कॉइल को लटकाने के लिए, रेक्टेंगुलर कॉइल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेक्टेंगुलर कॉइल को लटकाने के लिए पीतल का बना हुआ, ब्रास मटेरियल का बना हुआ एक लटकाने की व्यवस्था है जो टॉर्सन हेड कहलाता है, और उससे फॉस्फोर ब्रोंज का पतला तार लटकाया गया है। पतला तार उससे टॉर्सन हेड के हेल्प से लटक रहा है। तो टॉर्सन हेड एक सपोर्ट का काम करता है। इस टॉर्सन हेड को हिंदी में मरोड़ शीर्ष कहा जाता है, मरोड़ शीर्ष। और फॉस्फोर ब्रोंज का पतला तार है, उसमें एक मिरर व्यवस्थित कर दिया गया है, कॉन्केव मिरर M, इसको हमने दिखलाया है, और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। और इस तार से एक ये ब्रास का बना हुआ, पीतल का बना हुआ, ब्रास मटेरियल का बना हुआ एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसमें कॉपर का इंसुलेटेड कॉपर वायर जो इंसुलेटेड कर दिया गया है ऊपर प्लास्टिक का कवर लगाकर, और उसका अनेक फेरा, अनेक टर्न्स उसमें हैं, अनेक यानी कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया गया है रेक्टेंगुलर फ्रेम पर, ब्रास का रेक्टेंगुलर फ्रेम पर। तो रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया, और इसके भीतर जो है भीतर एक आयरन पीस है, स्मॉल आयरन पीस है, जिसको कोर कहा जाएगा। ये जो फ्रेम है PQRS जो कॉइल है, उसके अंदर का जो पोर्शन होता है वो खाली होता है, और उसमें एक आयरन कोर C इसमें एडजस्टेड होता है, जो कि इस कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को कहीं टच नहीं करता है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर रखे कैसे, उसको सब रखा जाता है। तो यहाँ पर एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया जाएगा, यहाँ से फ्रेम से, ये कॉइल के फ्रेम से एक सपोर्ट लगा रहता है, इस पर स्टैंडिंग, जिस पर कि उस पर रख दिया जाता है, उसी पर रखा हुआ होता है आयरन कोर। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का ये स्टैंड है जिस पर कि रखा हुआ है। और इसके निचले, ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, उसके निचले पार्ट से, निचले फेस QR से एक स्प्रिंग कनेक्टेड होता है। स्प्रिंग क्यों कनेक्टेड होता है? जिससे कि स्प्रिंग का जो स्टील का स्प्रिंग है, जिसका टॉर्सन कांस्टेंट C का जो वैल्यू होता है, वह टॉर्सन कांस्टेंट एंटन नियतांक का जो वैल्यू होता है वह काफ़ी स्मॉल होता है, जिससे कि सेंसिटिविटी को बढ़ाई जा सके, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाई जा, सुग्राहिता को बढ़ाई जा सके। इसलिए इसके लिए स्प्रिंग, स्टील का एक स्प्रिंग, लाइट स्प्रिंग उसे अटैच कर दिया जाता है। और यहाँ जो है कनेक्टिंग वायर्स है, देखिए स्टील से, स्प्रिंग से कनेक्टेड है कनेक्टिंग वायर, और इसको कनेक्टिंग स्क्रू यहाँ पर है T2। और उसी ढंग से फॉस्फोर ब्रोंज के तार को, जहाँ टॉर्सन हेड है तो वहाँ से एक कनेक्टिंग वायर से इसको एक कनेक्टिंग स्क्रू T1 से कनेक्टेड है, और T1 T2 के बीच में बैटरी की ये सब लगाकर, रियोस्टेट ये सब कनेक्ट करके
करंट कॉयल से होकर करंट भेजा जाता है, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर के कॉयल से होकर के करंट को सेंड किया जाता है। तो उसके लिए बैटरी चाहिए। T1 T2 कनेक्टिंग स्क्रू है जो कि कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, और इन T1 T2 के बीच में बैटरी कॉयल, बैटरी को की रियोस्टेट जो करंट के वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो ये सब ऐड करके ज्वाइन करके सर्किट पूरा करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया जाएगा दोनों इंड्स के बीच में, कनेक्टिंग वायर के दोनों इंड्स के बीच में, जिससे कि करंट फ्लो कर सके। इससे करंट जो है फॉस्फोरस के वायर से पहले पास करेगा और वहाँ फिर होते हुए कॉयल से, और जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर देखिए करंट के कारण आई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इस पर फोर्स काम करेगा जो वर्टिकल साइड है, और हॉरिजॉन्टल साइड PS और QR पर जो फोर्स काम करेगा उसको हमने पीछे का जो पार्ट है उसमें करंट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बतलाया था कि PS साइड और QR साइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और इस पर जो फोर्स काम करेगा दोनों साइड पर वो उसका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। PS साइड पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, QR फेस पर जो फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम लाइन से होकर के पास करता है। जिस लाइन पर दोनों फोर्सेस काम कर रहा है, दोनों साइड्स ओरिएंटल साइड्स QR और PS पर, आयताकार कुंडली की क्षैतिज भुजाओं PS और QR पर जो दो फोर्सेस काम करेंगे करंट फ्लो करने के कारण, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा ही है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इलेक्ट्रोमैग्नेट का दो स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस है कॉन्केव शेप का। कॉन्केव शेप इसलिए कि जिससे कि कॉन्केव शेप दोनों पोल पीसेस का इसलिए और कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना रहे, और साथ साथ कोर भी जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल पीसेस से, तो वह इस कोर से होकर के ही साउथ पोल में इंटर करे, बाहर न जा पाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसंट्रेटेड रहे कोर के अंदर ही, कॉयल के अंदर ही। इसके लिए आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ, नरम लोहे का बना हुआ नरम लोहे का बना हुआ एक पीस ब्लॉक, जिसको C नाम दिया गया, जिसको आयरन कोर कहा जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है कॉयल के बीच में। और कॉन्केव से इसलिए दोनों ये पोल पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कॉन्केव से इसलिए बनाया जाता है कि जिससे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना रहे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वह मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कॉयल का जो प्लेन होता है, इस कॉयल रेक्टेंगुलर कॉयल का प्लेन वह मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा पैरेलल बना रहे, जिससे कि कॉयल पर नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, जिसके कारण जो टॉर्क एक्ट करेगा कॉयल पर वह टॉ इक्वल टू NIAB sin 90, तो sin 91 हो जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वह कितना होगा NIAB, जिसको हमने डिराइव भी किया था रेक्टेंगुलर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डिराइव किया था, जो पिछले पार्ट्स में इसके दो पार्ट पहले मैंने उसको डिराइव किया था। दिस इज 15 पार्ट, तो आई थिंक पार्ट 12 में हमने टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उस एक्सप्रेशन को डिराइव किया था, जिसमें टॉर्क का फॉर्मूला होगा NIAB sin थीटा। तो जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस स्थिति में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के में हर स्थिति में जो कॉयल होगा, जो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का जो कॉयल है रेक्टेंगुलर कॉयल, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बना रहता है, जिससे कि जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे कॉयल के प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा कॉयल का एरिया वेक्टर, वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 एंगल बनाएगा, जिसके कारण जो टॉर्क का एक्ट करेगा कॉयल पर वह मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट कराने के लिए जिससे कि कॉयल जो है मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करे, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेडियल रखा जाता है, बनाया जाता है, और उसके लिए कॉन्केव पोल पीसेस का यूज किया जाता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, which can be asked as a short question in different board examinations, CBSE boards and as well as different state boards. तो अब इस पे जो करंट फ्लो करेगा कॉयल से होकर आई, तो करंट का डायरेक्शन देखिए ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है, ये जो कॉयल का सभी फेसेस हैं, ऑल 4 फेसेस PQ, QR, RS एंड PS, वह फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल फेस है PS और QR, उस पर जो फोर्स काम करेगा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और दोनों फोर्सेस का, और जो लाइन ऑफ एक्शन होगा उन दोनों फोर्सेस का एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा, जिससे कि वे दोनों फोर्स
एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फोर्स केवल बच जाएगा इस पे, ये आपका पी क्यू जो वर्टिकल साइड्स है, दोनों जो वर्टिकल साइड्स है मैग्नेटिक फील्ड के जो वर्टिकल साइड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के वर्टिकली जो सस्पेंडेड कॉइल है चूँकि, तो उसके जो वर्टिकल साइड्स है पी क्यू और आर एस, वह फोर्स का टू फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे आई एल बी साइन 90, क्योंकि थीटा 90 है, यहाँ थीटा जो है 90 है, चूँकि मैग्नेटिक में जो दोनों वर्टिकल फेसेस है पी क्यू और आर एस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल फेस पी क्यू आइदर ऑन फेस पी क्यू और द फेस आर एस will be equal to F is equal to ILB sin 90, sin 91. Therefore, the force acting on this vertical face PQ of length L is ILB. And similarly, the face RS of the coil also experiences force F is equal to ILB sin 90, sin 91. That is F equals to ILB. तो ये दोनों फोर्स मिल करके ही एक कपुल का फॉर्मेशन करेगा, और इस कपुल का कारण जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करेगा। कपुल का जो मोमेंट होगा, इस कपुल का जो मोमेंट होगा, मोमेंट कैसे कपुल का निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो इसके कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट करेगा कॉइल पर, जो कि इसको जो वर्टिकल पोजीशन में कॉइल लटक रहा है दो स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस के बीच से, तो वहाँ उस पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसको दिखलाएगा यहाँ हमने दिखलाया है कि यहाँ पर डिफ्लेक्ट होने के कारण जो पी एस इसका फेस है, कॉइल का जो पी एस सरफेस है फेस, वह थोड़ा सा घूम गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि इसमें करंट मैंने ये हम अपने लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के लंबवत, परस्पर लंबवत, तीनों उंगली को, मिडिल फिंगर को, फोर्थ फिंगर को और थंब को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे, और करंट को मिडिल फिंगर को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में। देखिए मिडिल फिंगर है करंट के डायरेक्शन में, और ये कंडक्टर जो से करंट है उस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखेंगे, और ये जो फिर फोर्थ फिंगर है तर्जनी, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो थंब जो है इस कंडक्टर पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो धारावाही चालक है उस पर जो फोर्स चुंबकीय बल काम करेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए फोर्स का डायरेक्शन किधर हो रहा है, नीचे की ओर, ILB sin 90। और फिर जब है यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे RS फेस पर, तो यहाँ पर भी मिडिल फिंगर को हम करंट के डायरेक्शन, कंडक्टर के लॉन्ग जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लॉन्ग रखेंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फोर्थ फिंगर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो है थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और फोर्स का डायरेक्शन किधर हो रहा है, अपवर्ड, ऐसे इस ढंग से थंब के डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। ILB sin 90 दैट इज sin 91, तो ILB हो गया। तो इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में करंट रखेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड N और S जो पोल पीसेस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का, उसके पोल पीसेस के बीच में कॉइल लटका हुआ है, तो इसके दोनों वर्टिकल साइड फोर्स एक्सपीरियंस करता है ILB sin थीटा, ILB sin थीटा, और इस फोर्स के दोनों फोर्स के कारण जो है कपुल फॉर्मेशन होगा, और ये कपुल इसको जो जिस वर्टिकल पोजीशन में जिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैंग कर रहा है, सस्पेंडेड है कॉइल, उससे उसको डिफ्लेक्ट करने का प्रयास करेगा। करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है, डिफ्लेक्शन भी एंटी क्लॉक होगा, और उस सिचुएशन को हमने यहाँ दिखलाया है। PS इसका जो अपर फेस है, जिसका बेड्थ जो है, जिसका ये B है, ये B है, PS जो है उसका बेड्थ है, इसका जो साइज का लेंथ है, PS साइज का जो लेंथ है वो B हो गया, जो कि कॉइल का ब्रेड्थ भी हम माने थे, लेंथ PQ को माने थे L, और ब्रेड्थ PS या QR इजकल टू B। और यहाँ पर RS भी, चूँकि PQ रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल में जो सामने का साइड होता है उसका लेंथ इक्वल होता है, ये भी लेंथ उतना ही होगा, इसका भी लेंथ, ये साइड RS का भी लेंथ L ही होगा, तभी तो फोर्स एक्सपीरियंस किया उसने, F इक्वल टू ILB sin 90। तो अब देखिए इसके कारण जो होगा, अब कॉइल जब टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करेगा, डिफ्लेक्टिंग कपुल के कारण अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में PS था, अब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला गया ये ऐसे। तो ये जो फोर्स भी है देखिए डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो इसका भी लाइन ऑफ एक्शन अब आ गया नीचे की ओर, और उसी ढंग से जो F इक्वल टू I जो RS वर्टिकल साइड पर जो फोर्स काम कर रहा था वो भी थोड़ा सा वो भी जो है शिफ्ट कर गया लेफ्टवर्ड, दैट इज एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में ये भी हो जाएगा। तो दोनों पैरेलल हो गया, एकदम एंटी पैरेलल हो गया, F इक्वल टू ILB, और ये जो फोर्स था इसको हम F1 भी मान सकते हैं, इसको F2 मानेंगे, इसको F3 भी मान सकते हैं, F1 है, और इसको F3 मान सकते हैं, क्योंकि इस पर फोर्स QR साइड पर F2 होगा, F3 इस पर F4, तो F3 और F4 तो बैलेंस हो गया, पहले भी हमने पार्ट 12 में दिखला दिया है। तो अब जो है दोनों फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, तो अब जो टॉर्क होगा वह क्या होगा,
आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब F1 हो गया इधर नीचे डाउनवर्ड, F3 हो गया अपवर्ड, तो आइदर फोर्स F1 और F3 दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, उसका मैग्नीट्यूड, और दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दोनों फोर्सेस है एक दूसरे के पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस दोनों फोर्स के क्या होगा, इस ढंग से होगा। दोनों फोर्स के ये दोनों पैरेलल है और वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो उसके लिए क्या किया है कि F1 को जो है इसको F1 को इसको ऊपर की ओर प्रोड्यूस कर दिए हैं, इसको जो है एस से एक और लाइन एस के जहाँ दोनों मीट किया है के पॉइंट पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और किसी समय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है बी वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर कॉइल को रखा गया है, लटकाया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, बी वेक्टर इधर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी समय इस कॉइल के पीएस, जो साइड पीएस है उसके प्लेन पर, कॉइल के प्लेन पर जो नॉर्मल ड्रॉन किए हैं ON, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, वह मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म करता है, थीटा। तो ये थीटा है, तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हम परपेंडिकुलर साइड जो है दोनों फोर्स के F1 F3 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क के लिए चाहिए वह मिल जाएगा। अब इसमें हम साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, इस एंगल के सामने का ये एंगल थीटा हो गया, ये जब थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो ये सामने का साइड हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर केस अपॉन हाइपोटेनस टीएस। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो इस देयरफॉर केस इक्वल टू बी साइन थीटा हो गया। अब हमको मिल गया टॉर्क निकालने के लिए। अब टॉर्क क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, क्या हम लिख सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, जो हमने पार्ट 12 में निकाला था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, एक्टिंग ऑन द कॉइल, एक्टिंग ऑन द कॉइल इज क्या हो जाएगा, टॉर्क डी, टॉ सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स, फार्मूला हमको था आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड ILV मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस केस, तो हमने फार्मूला ले आया था ILB मल्टीप्लाई बाई बी साइन थीटा और L इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो जो फार्मूला हमको था पार्ट 12 में जो हमने डिराइव किया था कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू NIAB साइन थीटा, मतलब टॉर्क निकला प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस केस, तो ILB इंटू केस दैट इज बी साइन थीटा। तो दैट इज इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि यहाँ पर जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर का बहुत सारा सो मेनी नंबर ऑफ टर्न्स होता है ब्रास के रेक्टेंगुलर फ्रेम पर। तो n बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इन द गैल्वेनोमीटर, सो वी कैन राइट इट टॉर्क डिफ्लेक्शन, टॉ डी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज NIAB साइन थीटा एक्सप्रेशन था साइन थीटा यहाँ है, लेकिन फॉर द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन 1। एंड फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, नाउ फॉर द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा 0, मतलब कॉइल के प्लेन पर जो नॉर्मल ड्रॉन किए हैं वह नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से कितना को एंगल बनाएगा, उस स्थिति में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड उस सिचुएशन में होता है जब प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है प्लेन ऑफ द कॉइल ये हमेशा पैरेलल होता है। इफ़ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और उस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के पैरेलल हो जाएगा तो उस कॉइल पर जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, कॉइल पर जो हम नॉर्मल ड्रॉन करेंगे वह जो नॉर्मल होगा वह कितना एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। मतलब एरिया वेक्टर जो होगा उस सिचुएशन में जो एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के बी के क्या हो जाएगा, अभी तो एंगल थीटा है, लेकिन जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जब पीएस साइड एकदम यहाँ पर देखिए, पीएस साइड यहाँ भी कॉइल है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ दिखलाया है, ये आपका पीएस साइड है, यहाँ पी है और यहाँ एस है, और ये कोर है जिसको सर्किल से दिखाया है, कोर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को मैंने सर्किल से दिखाया है कोर को, और ये कॉइल है पीएस। तो कहने का मतलब पीएस जब यहाँ पर, तो जब इस पोजीशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पर जो नॉर्मल ड्रॉन किए हैं उससे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है,
लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के एकदम पैरेलल हो जाएगा पीएस, तो उस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा पीएस जब और डिफ्लेक्ट होकर के एकदम पैरेलल हो जाएगा, अभी तो थोड़ा ऐसे हुआ है, फिर जो है डिफ्लेक्ट होकर के एकदम मैग्नेटिक फील्ड के जब पैरेलल हो जाएगा ये फेस, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के भी मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इस जो कॉइल है उसके प्लेन के एकदम पैरेलल हो जाएगा। ये जब पैरेलल आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो उस स्थिति में थीटा माने क्या हो जाएगा, ये जो थीटा होगा वह एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तब एरिया वेक्टर, तब इस पर जो नॉर्मल हम ड्रॉन करेंगे, ये कॉइल का फेस पीएस है, इस पर जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे वह उसके अलॉन्ग एरिया वेक्टर होगा, डेट इज एरिया वेक्टर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो इस स्थिति में जब पीएस एकदम आ जाएगा, इसके एकदम पैरेलल हो जाएगा, ऐसे पीएस घूम करके, पीएस जो है घूम करके एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल जब आएगा तो ये जो एंगल है वो 90 हो जाएगा, जो नॉर्मल ड्रॉन किए हैं बी के 90 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के थोड़ा सा ऐसे हो गया है, रेडियली है, और यहाँ आया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन डॉटेड, क्योंकि बीच में खाली जगह है, स्पेस है कॉइल के बीच में, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकता है एम्प्टी स्पेस से, तो उसके अदर फेस से जो है निकल गया, माने बाहरी फेस से, कॉइल का भीतर खाली जगह है, तो यहाँ से आ करके अब फिर यहाँ पर फिर रेडियल हो गया, फिर रेडियल डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे आया, इस ढंग से थोड़ा मुड़ गया, यहाँ पर पास किया हॉरिजॉन्टल होकर के कॉइल के अंदर, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ करके साउथ पोल में इंटर किया। नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल में इंटर करता है, इसी ढंग से दिखाया गया है। बीच में केवल जब ये पीएस जो है इसके एकदम सामने आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जब पीएस इसके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो बीच वाला जो लाइन होगा केवल ये इससे होकर के सीधे पास करेगा पीएस से होकर के। उस समय पीएस जो है यहाँ तो थोड़ा तिरछा दिखाया गया है, इस ढंग से हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और तब जो है सीधे निकल जाएगा, तब उसमें मुड़ेगा नहीं, बेंड नहीं करेगा। और इस स्थिति में हमेशा, अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस हुआ, फिर जो है यहाँ से डॉटेड दिखाए हैं, क्योंकि भीतर एम्प्टी स्पेस में पास नहीं कर सकता है कॉइल के अंदर, तो फिर के उसके फेस के बाहर फिर जो है इस ढंग से ऐसे इंटर किया, इस ढंग से फिर बाहर डाइवर्ज कर गया, निकल गया, इस ढंग से इंटर किया, इस ढंग से निकल गया, जो कि रेडियली, इसी को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जिसको कि हमने दिखलाया है। ये कॉइल है और ये कोर है, कोर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को सर्किल से दिखाया गया है। तो फॉर द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वी कैन राइट नाउ वर्किंग ऑफ, दिस इज द वर्किंग ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वर्किंग जिसमें हम फार्मूला ऑब्टेन करेंगे, ये शो करेंगे कि करंट फ्लो थ्रू द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिफ्लेक्शन। तो फॉर द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा इक्वल्स टू 90, जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे कॉइल के प्लेन पर, जैसे एरिया वेक्टर जो होगा वह बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा जो, या जो मैग्नेटिक फील्ड है वह कॉइल का जो प्लेन है वह मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसमें फिगर 3 में रिप्रेजेंट किया है। तो थीटा 90 हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क, जो तब मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा NIAB sin 90। Since for the radial magnetic field theta is equal to 0, so deflecting torque acting on the coil is given by tau d equals to NIAB sin 90 degree, that is NIAB, and this is the maximum torque acting on the, ये tau d max हो जाएगा, maximum torque acting on the loop, this is equation acting on the loop, acting on the coil, rectangular coil of the moving coil galvanometer, and due to this deflecting torque acting on the coil, this deflecting torque tries to rotate the coil from its initial vertical position. So due to deflection of the coil as well as mirror attached to the suspension wire also rotates, due to which there is twist in the suspension wire.
और जब कॉयल घूमेगा तो सस्पेंशन वायर में जो मिरर अटैच्ड है, कनकेव मिरर, वो भी रोटेट करेगा। तो इसके कारण, रोटेशन के कारण क्या होगा, मिरर के और फास्फोरबोन्स के वायर में भी ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, ऐंठन प्रोड्यूस होगा। उसमें भी फास्फोरबोन्स का वायर में भी रोटेशन होगा, ट्विस्ट होगा मिरर के कॉयल के रोटेट करने के कारण। तो वह जो ट्विस्ट होगा तो उसके कारण सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट होने के कारण एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो कि कॉयल को रोटेट करने का अपोज करेगा। और जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा कॉयल पर, जो एक्ट करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क, वह कॉयल के डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग कपल ड्यू टू द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द वायर इज गिवन बाई, नाउ द रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉयल, जो कि सस्पेंशन वायर में जो फास्फोरबोन्स का वायर है उसमें ट्विस्ट के कारण प्रोड्यूस होगा। एक्टिंग ऑन द कॉयल ड्यू टू द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द सस्पेंशन वायर, ड्यू टू द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड। कॉयल को लटकाने वाला जो तार है फास्फोरबोन्स का, उसमें भी ऐंठन होगा, क्योंकि कॉयल जब रोटेट डिफ्लेक्ट होगा अपने इनिशियल पोजीशन से, जो वर्टिकल पोजीशन में लटक रहा है, तो उससे जब ये डिफ्लेक्ट होगा अपने टॉर्क के कारण, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण, तो फास्फोरबोन्स से, चूँकि कॉयल को लटकाया, तार से लटकाया हुआ है, फास्फोरबोन्स के तार से, वायर से लटकाया है कॉयल को, तो कॉयल में डिफ्लेक्शन होगा, तो जो लटकाने वाला जो तार सस्पेंशन वायर है उसमें भी ट्विस्ट उत्पन्न होगा। ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द वायर, सस्पेंशन वायर, इन द सस्पेंशन वायर इज restoring torque tau is equal to tau r, restoring torque tau r is equal to tau r for restoring and tau d for deflecting torque। ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, थीटा के, तो दैट इज c इंटू थीटा, वेयर c इज ट्विस्टिंग कांस्टेंट ऑफ द वायर मटेरियल ऑफ द सस्पेंशन वायर, और ट्विस्टिंग कांस्टेंट पर यूनिट ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द वायर, c इज कॉल्ड ट्विस्टिंग कांस्टेंट, और ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्टिंग कांस्टेंट of the suspension of the material of the suspension wire means suspension wire, जो कि फास्फोरबोन्स मटेरियल का। और ये क्या करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, दिस रिस्टोरिंग टॉर्क ट्राइज टू अपोज द डिफ्लेक्शन, रोटेशन ऑफ द कॉयल। तो सो इन द इक्विलिब्रियम का मतलब कॉयल एक पार्टिकुलर पोजीशन में रहे, स्थिर रहे, रेस्ट में रहे, पार्टिकुलर कोई पोजीशन में रहे, रेस्ट में रहे, तो उसके लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क। जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस कर देगा, तो कॉयल जो है किसी पार्टिकुलर स्टेट में रेस्ट में आ जाएगा। इन द इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, tau d इक्वल टू tau r, और tau d इक्वल टू NIAB sin 91 मैक्सिमम टॉर्क था, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा इक्वल टू 90 हो जाता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, NIAB इक्वल टू C थीटा, और देयरफॉर और I इक्वल्स टू, हमें I निकालना है, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से स्मॉल करंट हम मेजर करते हैं जो सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करता है। तो I निकल गया, और I इक्वल्स टू I इक्वल्स टू C अपॉन C इज द ट्विस्टिंग कांस्टेंट ऑफ द वायर, C अपॉन NAB, ये सब कांस्टेंट ही है, तो अनदर कांस्टेंट मान लेंगे। C इज द ट्विस्टिंग कांस्टेंट ऑफ द वायर, सस्पेंशन वायर, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स of the coil, A is the area of the coil, and B is the magnetic field। A is the area of the coil which is equal to rectangular coil का एरिया हो गया, जो कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, रेक्टेंगुलर कॉइल का लंबाई गुने चौड़ाई एरिया हो गया, और ये सब कांस्टेंट है, तो इसको अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, एंड इट इज अनदर कांस्टेंट I इज इक्वल टू, और I इक्वल टू K इंटू थीटा, और K गैल्वेनोमीटर, K इज कॉल्ड K इज इक्वल टू C अपॉन NAB। C कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है कॉइल का, एरिया कांस्टेंट है, और B कांस्टेंट है, तो सारा कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज
another constant, K is another constant which is called galvanometer constant, where C by NAB इक्वल्स टू K, ये कहलाएगा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर नियतांक इसको हिंदी में कहा जाएगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इससे क्लियर हो गया कि I प्रोपोर्शनल टू थीटा, देयरफॉर I प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब करंट जो है डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इक्वेशन 5 से रिजल्ट यही आया कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि I इक्वल टू K थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं I डायरेक्टली I इज वेरीज एज थीटा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो अगर थीटा हम मेजर कर लेंगे तो करंट भी मेजर होगा। और थीटा मेजर करने के लिए क्या करते हैं, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट का यूज करेंगे। मतलब एक स्केल ले लेंगे और स्केल के बगल में लैंप रखेंगे, यह स्केल है मीटर स्केल, और एक स्केल ले लेंगे और बगल में नीचे उसके बगल में लैंप, यहाँ लैंप है, यहाँ स्केल है, ठीक लैंप के ऊपर, और यहाँ पर एक मिरर रखेंगे, मिरर है, ये मिरर का पोजीशन है, और यहाँ से लैंप से लाइट इस पर मिरर पर इंसिडेंट कराएंगे। अब कॉइल जब घूमेगा तो कौन के मिरर जो फर्स्ट जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉइल रोटेट करेगा, तो उस सिचुएशन में कॉइल रोटेट करने से जो कॉइल को लटकाने वाला जो सस्पेंशन वायर है फॉस्फोर ब्रोंज का, उसमें मिरर लगा हुआ है, मिरर अटैच है कॉनकेव मिरर, तो उसमें भी रिफ्लेक्शन होगा। तो उस सिचुएशन में अगर मान लिया किसी पोजीशन में ये है, किसी पोजीशन में है ये मिरर है एक पोजीशन में, तो अगर थीटा कोण से कॉइल के घूमने, अगर कॉइल थीटा कोण से रिफ्लेक्ट हो गया तो मिरर भी थीटा कोण से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में इसका पोजीशन मिरर का चेंज हो जाएगा, थीटा एंगल से घूम करके, रोटेट हो करके चेंज हो जाएगा। तो ये अब थीटा से पहले पोजीशन से घूम गया, एम पोजीशन में है, एम डैश पोजीशन में आ गया। तो ये क्या होगा कि जो ये इसके कारण क्या होगा कि अगर इंसिडेंट डायरेक्शन को, लाइट के डायरेक्शन को इंसिडेंट मानते हुए थी, लाइट के डायरेक्शन को जो बल्ब से लाइट हुआ, ये बल्ब हो गया, लैंप हो गया, यहाँ पर लैंप है, तो लैंप है, बल्ब है, इससे लाइट जो है भेजा गया। तो अगर लाइट के डायरेक्शन को रखते हुए अगर मिरर थीटा कोण से रोटेट कर जाएगा तो रिफ्लेक्टेड इमेज भी कितने से, रिफ्लेक्टेड इमेज जो होगा मिरर से वो 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो इसका जो लाइट है, इसका जो इमेज होगा बल्ब से जो लाइट आ रहा है, अब 2 थीटा एंगल पर जा करके स्केल पर यहाँ जा करके स्पॉट मिलेगा स्केल पर, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं d, स्मॉल d, और ये लैंप से मिरर का जो पोजीशन है उसका डिस्टेंस कैपिटल D है। तो ये लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट है, ये फिगर है लैंप, फिगर 4, 3 फिगर्स हमने बनाया था, ये लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट हो गया, लैंप एंड स्केल एडजस्टमेंट और अरेंजमेंट, स्केल अरेंजमेंट, जिसमें लाइट के डायरेक्शन को अगर स्थिर कांस्टेंट मानते हुए, लाइट के डायरेक्शन को स्थिर मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, अगर मिरर को थीटा कोण से अगर मिरर रोटेट किया तो मिरर से जो रिफ्लेक्टेड इमेज होगा, एम से एम डैश पोजीशन में चला गया, तो जो रिफ्लेक्टेड इमेज होगा मिरर से, लैंप से जो लाइट आ रहा है उसका, वह 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन का जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार। तो अब इससे जो है इससे अब हमको थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जब थीटा का वैल्यू आएगा तो करंट का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रिजल्ट आया I इक्वल टू K थीटा, देयरफॉर I प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो अब लैंप एंड स्केल, उसमें लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट में हम tan 2 थीटा ले लेंगे, tan 2 थीटा इक्वल टू एंगल 2 थीटा है। तो ये लैंप पर जो डिफ्लेक्शन है लाइट का, ये बल्ब है जिससे लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और मिरर के डिफ्लेक्ट होने से, थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होने से जो उसको इमेज है, जो लाइट इस पर आकर के मिरर पर पड़ रहा है लैंप से, वह 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के स्केल पर आकर के, इसका स्केल पर आकर के लाइट जो है यहाँ इंसिडेंट होगा, यहाँ फोकस होगा। तो ये एंगल जो है 2 थीटा हो गया, और इसको हम D मान लिए, लैंप से उसका जो लाइट जो फोकस हुआ है वो डिस्टेंस D है। तो 2 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा इक्वल टू, और tan थीटा चूँकि अगर थीटा स्मॉल है तो tan 2 थीटा को हम 2 थीटा मान सकते हैं। अगर थीटा इज स्मॉल देन tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू थीटा, सो tan 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, tan 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 थीटा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर D अपॉन बेस हो जाएगा कैपिटल D, जो कि लैंप से स्केल का डिस्टेंस है, D अपॉन D कैपिटल D, और 2 थीटा इक्वल टू
डी अपॉन डी, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू डी स्मॉल डी अपॉन 2d। तो ये आपका रियल टेक आ गया लैम्प स्केल अरेंजमेंट से, इक्वेशन नंबर 6 मान सकते हैं। डी वेयर कैपिटल डी है डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम द लैम्प, वेयर कैपिटल डी हो गया डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम द लैम्प। लैम्प से या बल्ब है तो बल्ब से, लैम्प और बल्ब से मिरर का डिस्टेंस कैपिटल डी हो गया, और स्मॉल डी क्या है, वह जो है लैम्प से जो लाइट का रिफ्लेक्टेड लाइट है मिरर के द्वारा, तो उसका जो स्पॉट है जहाँ पर वो फोकस हुआ है उसका डिस्टेंस हो गया स्मॉल डी। ये तो डी बाई डी थीटा, इसे तो इससे हमको थीटा, अब डी का वैल्यू स्केल से, स्केल तो है ही है मीटर स्केल, तो इस स्केल से कहाँ ये इसका पोजीशन है लैंप से ये माप मेजर कर लेंगे, और लैंप से मिरर कितना डिस्टेंस पर है वो कैपिटल डी मालूम हो जाएगा, तो इससे डिफ्लेक्शन थीटा मिल जाएगा। डिफ्लेक्शन थीटा मिल जाएगा, यहाँ लाइट का डिफ्लेक्शन जो है थीटा मिल जाएगा, तो मिरर का डिफ्लेक्शन थीटा मिल जाएगा, तो मिरर का डिफ्लेक्शन जितना होगा उतना ही कॉइल का डिफ्लेक्शन होगा, तो ऑब्टेन हो जाएगा। और आई चूँकि वैल्यू थीटा है, तो अगर करंट डिफ्लेक्शन मिल गया थीटा, तो करंट का भी वैल्यू लैम्प पैनल्स के अरेंजमेंट से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका वर्किंग थ्योरी ऑफ ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसमें है कि करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो उसको करते हैं। करंट सेंसिटिविटी इस इक्वेशन से 4 से मिलेगा। करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब है कि स्मॉल करंट से, इफ़ ड्यू टू ए वेरी चेंज इन स्मॉल करंट in the coil of a galvanometer there is large deflection produced in the galvanometer, then it is called, then the galvanometer is said to be more sensitive। यदि गैल्वेनोमीटर के कॉइल से बहुत स्मॉल करंट में चेंज हो और उसके कारण कॉइल में उसके कारण मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कॉइल में लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो, तो हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव। गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव। सेंसिटिव को हिंदी में सुग्राही कहा जाता है, अधिक सुग्राही है। स्मॉल करंट के का चेंज हुआ कॉइल में तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा दे, स्मॉल करंट से भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन, वेरी स्मॉल करंट से अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे दे तो हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सुग्राही है, सेंसिटिव है। और अगर लार्ज करंट दे रहे हैं, करंट में ज़्यादा चेंज हो रहा है या लार्ज करंट दे रहे हैं और डिफ्लेक्शन कॉइल में बहुत कम हो रहा है, तो कहेंगे कि लेस सेंसिटिव है। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट से हमने थीटा निकाल दिया ऑफ द गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर। और ये हो जाएगा क्या, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल पर यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट in the coil, it is defined as, it is current sensitivity of galvanometer defined as the deflection produced in the coil of the galvanometer, produced in the coil of a galvanometer पर यूनिट करंट, पर यूनिट चेंज इन करंट। यूनिट करंट से अगर डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस, यूनिट करंट के लिए कॉइल से होकर यूनिट करंट फ्लो करने के लिए, यूनिट करंट फ्लो करता है कॉइल से और उसमें जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट इन द कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। और इसका सिंबल है, करंट सेंसिटिविटी को लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं थीटा अपॉन आई, दैट इज देयरफॉर करंट सेंसिटिविटी हो गया थीटा अपॉन आई। करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट थीटा अपॉन आई, और थीटा अपॉन आई इक्वेशन 4 से मिल जाएगा यहाँ, क्योंकि आई इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी इंटू थीटा है, तो आई को डिनोमिनेटर में कर देंगे यहाँ, तो एन ए बी अपॉन सी हो जाएगा। थीटा अपॉन आई इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी, यही एक्सप्रेशन हो गया एन ए बी अपॉन सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 5, 6 था, 7 हो गया। चलिए, तो यही एक्सप्रेशन हो गया। इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, थीटा अपॉन आई
दैट मीन्स डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉयल पर यूनिट करंट इज इक्वल टू एन ए बी। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, तार में लपेटों की संख्या है, ए कुंडली का कॉयल का एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और सी ट्विस्टिंग कांस्टेंट है सस्पेंशन वायर का। तो थीटा बाई आई किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट एरिया के डिपेंड होगा, और सी का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो सी का वैल्यू जितना कम होगा ट्विस्टिंग कांस्टेंट का वैल्यू उतना ही करंट सेंसिटिविटी का गैलोमीटर का ज़्यादा होगा। इसलिए फॉस्फोरमोन का यूज़ किया जाता है वायर का, और स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है गैलोमीटर में, जिससे कि सी का वैल्यू कम रहे। एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक सेंसिटिविटी होगी, तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक और सेंसिटिविटी है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैलोनोमीटर। वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉयल पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द अक्रॉस द कॉयल। वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये तो करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन हो गया, थीटा अपॉन आई इक्वल टू एन ए बी बाई सी। नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी अब इसी से करंट सेंसिटिविटी का उल्टा होगा फिगर ऑफ मेरिट। तो आई अपॉन थीटा, अगर थीटा वन माने थीटा वन है, यूनिट डिफ्लेक्शन है कॉयल में, और उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, कॉयल में यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना करंट फ्लो होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट इज द रेशियो ऑफ आई अपॉन थीटा। इसका रिवर्स हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी का उल्टा फिगर ऑफ मेरिट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इट इज डिफाइंड एज द voltage sensitivity of a galvanometer, which is defined as the voltage or potential difference per unit deflection produced in the coil of the galvanometer per unit applied potential difference across the coil of the galvanometer। गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको हिंदी में कहेंगे गैल्वेनोमीटर का की वोल्टेज सुग्राहिता। इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज पर यूनिट वोल्टेज और पीडी अक्रॉस द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया गैल्वेनोमीटर का। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के कॉइल के क्रॉस अगर यूनिट वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उससे कॉइल में जितना डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर के कॉइल में जितना डिफ्लेक्शन होगा तो उसको हम कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको डिनोट करेंगे सिंबल थीटा बाई वी से, थीटा अपॉन वी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी वोल्टेज सुग्राहिता मतलब कॉइल का डिफ्लेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस कॉइल के क्रॉस जो अप्लाई किए हैं उसे डिवाइड करना होगा। तो कॉइल का डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कुंडली का, हिंदी में कुंडली का विक्षेप प्रति इकाई विभवांतर का जो प्रति इकाई विभवांतर या वोल्टेज, कुंडली का विक्षेप प्रति इकाई वोल्टेज को हम कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी और वोल्टेज सुग्राहिता। थीटा बाई भी इक्वल टू हो गया कितना, थीटा बाई भी हो गया वोल्टेज सुग्राहिता का सिंबल, और थीटा भी इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, और 1/r, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। आर जो है कैपिटल आर वह कॉइल का रेजिस्टेंस है, कॉइल का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है, अपॉन थीटा अपॉन आई। 1/r भी इक्वल टू आई आर कर दिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू हो गया थीटा अपॉन भी, और भी इक्वल टू आई आर, दैट इज थीटा अपॉन आई आर। तो 1/r इंटू थीटा बाई 1/r अलग कर लिया इंटू थीटा बाई आई। क्यों किया, क्योंकि थीटा बाई आई का हमको वैल्यू करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन है 7 में, थीटा बाई आई का वैल्यू है NAB बाई सी। तो थीटा बाई आई की जगह यहाँ लिख सकते हैं 1/r मल्टीप्लाइड बाई NAB अपॉन सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 8 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी। थीटा बाई भी इक्वल टू 1/r इंटू NAB अपॉन सी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल के। रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगा। आर डिनोमिनेटर में है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी
जो है वह रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगा। कम सेंसिटिव वोल्टेज के लिहाज से, वोल्टेज के लिहाज से जो है गैलोमीटर को हम कम सेंसिटिव कहेंगे अगर रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा है कॉइल का। नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सी का वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगा, इसलिए सी का वैल्यू कम रखना चाहिए जिससे कि करंट सेंसिटिविटी भी कम हो और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कम हो। तो ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। इस पर एक बेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम भी है, तो उसको हम अलग से प्रॉब्लम्स में बनाएंगे। और अब ये लास्ट पार्ट था, एक तरह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लास्ट टॉपिक था। अब इसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे शंट में कैसे होगा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस पर भी प्रॉब्लम पूछता है, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी उस पर पूछा जा सकता है, हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर और वोल्ट मीटर, तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 15 प्रॉब्लम पार्ट 16 होगा जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। उसके बाद एक पार्ट में प्रॉब्लम होगा, जो और कुछ प्रॉब्लम तो हमने बनाया है एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम्स, जो बचा हुआ है उसके लिए एक पार्ट में बनाऊंगा, पार्ट 17 होगा वो। लेकिन ये पार्ट लास्ट टॉपिक है इस एथी का, वीडियो एथी का चैप्टर का। लेकिन इसका एप्लीकेशन एक है, गैल्वेनोमीटर शंट का इसमें यूज है, तो और गैल्वेनोमीटर का एप्लीकेशन है ये एमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और वोल्ट मीटर का कन्वर्सन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो नेक्स्ट पार्ट में उसको करूँगा। थैंक यू वेरी मच।